Good morning, everyone. Welcome to Ansarkari. Today we will do newspaper of 19th January. First article talks about the ASCR report, that is Annual Status of Education report. It gives important aspect of the education of the country regarding the primary school. So, first of all, important is the school enrollment test record high in 2022. That is 98% of the children in the age group between 6 to 14 are now in school, up from 97%. 6 to 14 ईयर्स के बीच में जो बच्चे हैं वो भी 98% स्कूल में है, 98.4%. तो इट हैज इंक्रीज्ड. तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा. देन नेक्स्ट पॉइंट इज पेरेंट्स हैज हेल्प to give tuition to the kids during lockdown. There has been increase in small proportion of the children for private tuition from 26.4% in 2018 to 30.5%. मतलब प्राइवेट ट्यूशन का जो परसेंटेज है वो बढ़ गया है, 26% से 30% हो गया है 4 साल में. देन द एज ऑफ 11 to 14 years of children enrolled in government school, it has also increased from 65% to 71%. लेकिन जो बेसिक रीडिंग एबिलिटी है कि वो पढ़ पा रहे हैं, मैथ सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, वो सब पूरा घटा है फ्रॉम 27% to 20%. क्यों हो सकता है? ये रीज़न होगा कोविड के कारण, जब वो पढ़ाई कम की होंगे या फिर स्कूल बंद हुआ होगा. एंड इट हैड बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन टू कोप ड्यूरिंग द कोविड पीरियड. साथ ही साथ जो फैमिली इनकम डिक्रीज हुआ है कोविड के समय में, तो बहुत सारे बच्चे को नाम प्राइवेट स्कूल से कटा करके सरकारी स्कूल में वापस से एडमिशन किया गया होगा. तो इट इज़ रिटन हियर दैट many of the students my children were pulled out from private schools and they were put in government schools because the government school budget is very low as regarding private school. Then next article is on page number 7 regarding the healthy gut. तो ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं. इट इज़ गिविंग इंसाइट इनटू द हेल्दी गट, intestine and also the stomach issue that is prevalent among the population. तो ओवरऑल क्या है? प्रोबायोटिक. एक साथ यूपीएससी पूछ चुका था. तो प्रोबायोटिक है क्या? इट इज़ अ लाइव बैक्टीरिया एंड यीस्ट that is very important, good for digestive system. It also help to control other microorganism that is disease causing. उसको गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबायोटिक. इट इज़ फाउंड इन योगर्ट, फर्मेंटेड फूड, ब्रेड हो गया, कर्ड हो गया, दही हो गया, मट्ठा हो गया, छाछ, फिर फर्मेंटेड फूड में ब्रेड, फिर और केक हो गया एक्सेट्रा. नान भी बोल सकते हैं कि नान में मैदा होता है. तो फर्मेंटेड फूड, कर्ड, योगर्ट ये सब में पाया जाता है. इट इज़ बेनिफिशियल इन कॉन्स्टिपेशन, लैक्टोज इंटॉलरेंस, गट डिसऑर्डर. तो IBS और IBS 2 टाइप से होता है. एक है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और एक होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज. दीज आर 2 डिस्टिंक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर. तो IBS क्रोनिक सिम्टम है. इट compromises of several symptoms such as pain in abdomen, diarrhea, constipation, etc. Whereas other is related to the inflammation, swelling of intestine, which requires lifelong treatment. IBS is less serious than IBD, but it is difficult to treat. दूसरा है इसमें पॉइंट हेपेटाइटिस के बारे में. हेपेटाइटिस क्या है? इट इज ए इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर. It can be caused by heavy alcohol use, toxin, and some medication.
हेपेटाइटिस इज कॉज बाय वायरस. कॉमन वायरल हेपेटाइटिस कैसे क्या क्या है? तो A, B, C, E and rarely D. A and E is caused by fecal oral contamination. AE. CD is spread through contact with blood with infected person. तो यूपीएससी पूछ चुका था पहले. उसके बाद विल्सन डिजीज. यहाँ विल्सन डिजीज, इट इज ए जेनेटिक डिजीज caused by dysregulation of copper metabolism. तो विल्सन डिजीज पूछ सकता है एक बार, वाकई पढ़ सकते हैं आप. देन नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 11 रिगार्डिंग इंटरनल सिक्योरिटी. तो यूआपीआर तो पता है 1969 एक्ट है. उसके बाद सिमी पता होना चाहिए, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया. It was formed in Aligarh Muslim University, Aligarh, as an organization of youth and students having faith in Jamaat-e-Islami Hind, declared to be independent in 1993. Later, when it was found that it has ties with Hizbul Mujahideen or Lashkar-e-Taiba, it was declared anti-national elements and it was banned under UAPA. The next article is a continuum of first article, that is ASER survey. तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 616 रूरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो कंट्री है, तो इसमें से बताता है कि कितने सारे चिल्ड्रन है दे हैव एनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, एंड इम्पैक्ट कैसा है एजुकेशन का ड्यूरिंग कोविड पीरियड. बिकॉज देर हैज़ बीन लॉस ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग लॉन्ग कोविड, हायर ड्रॉप आउट रेट्स स्पेशली अमंग द ओल्डर चिल्ड्रन. Then next article we have already talked about the Pakistan talking about peace. तो क्या क्या इशू है पाकिस्तान में? पहला पॉइंट है कि इट इज रिपीटिंग द श्रीलंका इकोनॉमिक मेल्टडाउन. डेट क्राइसिस बहुत ज़्यादा है. इट इज सिक्योरिंग हैंड आउट लोन, स्मॉल लोन्स फ्रॉम सेवरल कंट्रीज. हाइब्रिड सिविल मिलिट्री डिस्पेंसेशन, मतलब सिविल मिलिट्री हाइब्रिड सिस्टम है पाकिस्तान में. तो ये सब जो इम्पोर्टेंट बस पॉइंट है इसको लिखने में काम आएगा, ऐसे इम्पोर्टेंट पूरा आर्टिकल नहीं है. देन नेक्स्ट आर्टिकल is on page number 30, which talks about the foreign university in India. National Education Policy 2020 talked about the overhaul of the education system. तो ये बताना चाह रहा है कि ठीक है फॉरेन यूनिवर्सिटी को बुलाएंगे, लेकिन what about the weaker section of society? How will they get adequate representation in the education system? इन द फॉरेन इंस्टीट्यूशन कैसे उनका भी एडमिशन कैसे होगा? तो एक उम्मीद यहाँ पर एक यहाँ मैसेज है कि देयर शुड बी अ नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन. लेकिन ये भी बात है कि द टेस्ट आर वेरी बायस्ड अगेंस्ट द स्टूडेंट फ्रॉम वीकर सेक्शन, क्योंकि जो भी कोचिंग क्लास जाते हैं, प्राइवेट कोचिंग जाते हैं, उनका फीस ज़्यादा होता है और जो वीकर सेक्शन है वो अफोर्ड नहीं कर सकते. ये भी एक है इशू. दूसरा है लैक ऑफ पॉलिसी रिगार्डिंग टू इम्प्रूव टू एक्सेस ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वीकर सेक्शन टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. फीस बहुत ज़्यादा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. तो हम लोग बात तो बोलना चाह रहे हैं, हम लोग बात तो कर रहे हैं कि रिगार्डिंग द एंट्री ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, लेकिन वी हैव टू ऑल्सो simultaneously talk about the affordability of the foreign institution courses. Second is enrollment of weaker section society, because enrollment of children from weaker section, and also the fees of the private institution. जैसे हमने इंस्टीट्यूट खोला था IIT-IIM with the help of foreign collaboration such as Russia, Germany and US,
इट कैन बी ऑल्सो रेप्लिकेटेड इन मॉडर्न टाइम्स ऑल्सो. ज़रूरी नहीं कि हर यूनिवर्सिटी बाहर से फंडेड हो, लेकिन वी कैन टेक हेल्प, वी कैन प्रमोट MOU बिटवीन द यूनिवर्सिटी. तो ये पूरा है. तो दिस आर्टिकल इज क्रिटिकिंग बेसिकली द एंट्री ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया. नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज है. दैट इज, विदाउट गुड गवर्नेंस इन डेमोक्रेटिक कंट्री इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेक द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द बॉटम. पिछड़े वर्ग तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पहुंचा सकते जब तक गुड गवर्नेंस डेमोक्रेटिक कंट्री में अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होगा. उसके बाद एग्जाम्पल है वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड. तो ये सब बेसिकली बताना चाह रहा है. देख, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जिसको प्राइज मिल गया है तो वहाँ पर कॉम्प्लेंसी और लेजीनेस नहीं होना चाहिए. उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए और भी काम करें गोल अचीव करने के लिए. पूरा इम्पोर्टेंट टेक अवे यही था पूरा आर्टिकल में से. फर्दर दूसरा आर्टिकल है कि द गुड गवर्नेंस that has been given incentive to the district magistrate and collector in their respective district. The model of that district cannot be replicated to other district because कुछ डिस्ट्रिक्ट का अपना एक यूनिक मॉडल होता है. द सोसाइटी इज डिफरेंट, द कल्चर, ट्रेडिशन एंड द बिहेवियर पैटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट. तो मॉडल को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसको एक सिस्टमेटिकली तरीके से अप्लाई करना चाहिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में. कट एंड पेस्ट नहीं होना चाहिए. तो दूसरा पॉइंट ये है, इसको एथिक्स में लिख सकते हैं. और एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट था कि रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकते हैं. विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन रीच द ग्रासरूट लेवल गवर्नेंस टू द पीपल इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. उसके बाद फिर सोशल ऑडिटिंग ऑफ मनरेगा जॉब्स, जियो टैगिंग ऑफ मनरेगा जॉब्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम. यूज ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड टू हेल्प द माइग्रेंट वर्कर्स टू ड्रॉ राशन फ्रॉम PDS. उसके बाद क्या हो सकता है, यूज of technology such as drones etc. for pesticides in fertilizers. Use of earth sensing images for land reform, for land record etc. तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ऑब्जेक्टिविटी ला सकते हैं सिस्टम गवर्नेंस के अंदर में. लास्ट माइल कनेक्टिविटी ला सकते हैं और साथ ही साथ जो एक दूरियां हैं सरकार और जनता के बीच में उसको कम कर सकते हैं. सेम है जो पहले पढ़े थे 18 तारीख को, फिर से आगे इसमें कि नेक्स्ट ईयर जो COP28 में UAE का जो प्रेसिडेंटशिप है तो उसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो UAE की तरफ से है, जो मुझे नहीं लगता ये इम्पोर्टेंट है इस तरफ. पहले द गवर्नमेंट, साइंटिस्ट एंड प्राइवेट सेक्टर, यूथ, सिविल सोसाइटी टू शुड वर्क टुगेदर to promote sustainable growth of energy and also to weed out to reduce the dependency on carbon. उसके बाद है next is UAE is also looking for hydrogen zero carbon fuel through investment. It is targeting net zero carbon by 2050. तो पॉजिटिव टेक अवे क्या है, क्या इसमें यह है कि इंडिया शुड हेल्प UAE, इंडिया शुड पार्टनर विथ UAE टू मीट इट्स रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030 and also the meet the demand of sustainable growth of energy by 2050 or reduce net zero carbon by 2070. तो natural carbon capture, planting of 100 million mangroves,
कैप्चर मोर कार्बन पर हेक्टर। ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दैट कैन बी यूज इन पेपर एग्जामिनेशन। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एग्री एफिशिएंसी, ग्रीन हाइड्रोजन, सस्टेनेबल फाइनेंस, कार्बन मार्केट डेवलपमेंट। ये सब वर्ड को यूज कर सकता है आंसर में। द नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द इंटरनल सिक्योरिटी। कैसे जो पाकिस्तान से ड्रोन जो आते हैं इंडिया में, इट क्रॉसेस एंड इट just drops Chinese pistol and even the ammunition AK-47 and afim or drugs in India's Punjab and Jammu and Kashmir. तो ड्रोन कैसे यूज होता है फॉर क्रॉस बॉर्डर इंटरफेरेंस और टेररिज्म, वो लिख सकते हैं यूज ऑफ ड्रोन। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल is also talking about ASCR। कुछ डेटा पॉइंट है यहाँ। पहला, ASCR कौन रिलीज करता है? प्रथम फाउंडेशन है, एनजीओ, एक एनजीओ है, तो ASCR इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है पे प्राइवेट सेक्टर का जो इनरोलमेंट है वो घटा है, पहले 30.9 था, 25 हुआ है। क्यों? कोविड के समय में पैसा कम हो सकता है, इनकम कम हो सकता है पेरेंट्स लोग को, उसी कारण वो सरकारी स्कूल में भर्ती ज़्यादा करवा रहे हैं। तो 65% सरकारी स्कूल में भर्ती था, 2018 में 72 हो गया। प्रपोर्शनल ऑफ ट्यूशन हैज़ इंक्रीज्ड, ये है। और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड विच इज supporting the fact that the enrollment of the students, of the children has increased to 98% from 97%. और कुछ नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा है नॉन नाटो एलाई। क्या होता है? जो नाटो नहीं है, तो बेसिकली पाकिस्तान वॉज ए मेजर नॉन नाटो एलाई। अभी एक तरह से लाया गया है यूएस में, जो बोलना चाह रहा है कि पाकिस्तान को नॉन नाटो एलाई का स्टेटस उसको हटाना चाहिए, रिवोक करना चाहिए। नाटो बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें बोलते हैं कि अगर एक भी कंट्री पर हमला होता है, इसका मीनिंग सब कंट्री पर हमला हुआ है, हर एक मेंबर पर हमला हुआ है, अटैक हुआ है। वैसे नॉन नाटो में मतलब कि द नॉन नाटो एलाई इज गिवन वेरी मच इम्पोर्टेंस एज कंपेयर टू नाटो एलाई, मतलब सिमिलर देता है, ज़्यादा नीचे नहीं रहता है इन एरिया ऑफ डिफेंस, ट्रेड, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन एक्सेट्रा। मिलिट्री इकोनॉमिक प्रिविलेज नहीं रहता है, लेकिन एक तरह से ज़्यादा कोऑपरेशन रहता है बिटवीन यूएस एंड नॉन नाटो एलाई एज कंपेयर टू नॉर्मल कंट्रीज। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल is talking about the new forward looking approach. The loss based approach क्या है? Under this approach, it is estimated to have created losses much more. ये पूरा आर्टिकल टेक्निकल आर्टिकल है, that is not relevant. That's all for today. Thank you.